हेलो एवरीवन। आज का लेसन शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि जर्नल एंट्री करना चाहता है या फिर स्टूडेंट्स जो कि जर्नल एंट्री करते समय सोचते हैं कि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, तो उन्हें मेरा 3 वीडियोस, पहला जो कि डबल एंट्री सिस्टम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला था, दूसरा जर्नल एंट्री पार्ट 1 एंड दिस वीडियो जर्नल एंट्री पार्ट 2, तीनों को अच्छी तरह से देखना और फिर उसे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करें। जर्नल एंट्री पार्ट 2। फर्स्ट, गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। हियर we recognize two aspects of this transaction. First is drawings account and another is goods. Here goods withdrawn by the proprietor, it means for personal use. तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? गुड्स का विड्रॉल हो रहा है। इट मीन्स गुड्स बिजनेस से जा रहा है। गुड्स परचेजेज अकाउंट, दिस इज a real account, and as per rule of debit and credit for real account, credit what goes out and drawings account will be debited. Why debited? Because drawings is ultimately deducted from capital इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग्स। इसका जो भी फिगर होगा इसमें से लेस करेंगे, उसके बाद जो आएगा वो रिमेनिंग कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस है। तो जब प्रोप्राइटर खुद के पर्सनल यूज के लिए गुड्स को निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स है जो कि लायबिलिटी को घटाता है। तो एज पर मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड credit, if there is decrease in any liability, that will be debited. Hence here drawings account is debited. Next is life insurance premium or income tax for proprietor is paid. Here again the amount is paid for proprietor or for their personal use. तो लाइफ इंश्योरेंस ऑन प्रोप्राइटर और इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर, देन अगेन drawings account will be debited and paid. Another item is paid means cash to cash account. As per rule of debit and credit, if there is decrease in liability, then it will be debited, and as per rule of real account, debit what comes in and credit what goes out. Here cash is going out from the business, then cash account will be credited. And narration will be life insurance premium on the life of proprietor paid.
This is the narration. Item 19. Interest on drawings. Here, two aspects of this transaction is drawings account and another is interest on drawings. Narration is interest charged on drawings. Why this is entered in this way? Because interest on drawings always increases the whole amount of drawings. Then suppose drawings is 10,000 and interest drawings is rupee 1,000. Then the total drawings will be 11,000. Then there is an increase in total drawings. Liability is increases. Then as per modern rule of debit and credit, if there is increase in any liability, then that will be debited. This is debited. And interest on drawings, this is a nominal account and it is an item of income for the business. As per rule of nominal account, all incomes will be credited. Profits or incomes will be credited. Then as per that rule, interest on drawings is credited here. Next is loss of goods by theft. कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में जो भी गुड्स आते हैं, जिनका कि बिजनेस में यूजुअल रूप से ट्रेडिंग होता है, उन गुड्स में से कुछ गुड्स या तो किसी भी तरह से चोरी हो जाते हैं, किसी थर्ड पार्टी द्वारा चुरा लिए जाते हैं, या फिर बिजनेस के कुछ एम्प्लॉय ही इसको अगर चुरा लेते हैं तो वो एक तरह का लॉस है. तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, इस केस में क्या होगा? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है तो मेरा गुड्स कम हो जा रहा है. इट मीन्स रियल अकाउंट में कमी आ रहा है. टू परचेजेज अकाउंट, narration will be loss of goods by theft वैल्यू रुपी. जितने का लॉस हुआ उतना यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. The whole transaction is
loss of goods by fire rupee 20,000 and claim accepted by the insurance company, and rupee 17,000 is received by check as claim amount. Then in this case, first of all, loss of goods by fire. Loss by fire account debit. Why it is debited? As per the rule of nominal account, if there is any loss, then the same will be debited. So loss by fire account is debited here, and what will be credited? गुड्स का लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ गुड्स का लॉस हो रहा है तो करेंगे टू परचेजेज अकाउंट. अमाउंट, इसका अमाउंट डालेंगे 20,000 and 20,000. Narration will be loss of goods by fire worth rupee, यहाँ वैल्यू डालेंगे. नेक्स्ट एंट्री विल बी and claim accepted by insurance company 17,000. Insurance claim account will be debited here, and what will be credited? Loss of goods by fire. लॉस बाय फायर और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर कुछ भी लिख सकते हैं. लॉस ऑफ गुड्स ही लिख देते हैं. लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. फायर अकाउंट. तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना एक्सेप्ट किया है? आउट ऑफ 20,000 ओनली 17,000. तो द अमाउंट विल बी 17,000. नरेशन विल बी claim accepted by the insurance company against loss of goods by fire worth rupee 20,000. 20,000 का गुड्स था, उसके अगेंस्ट में केवल 17,000 का ही एक्सेप्ट किया गया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा. तो नरेशन से फुल डिस्क्लोजर हो जा रहा है. तो जर्नल एंट्री करते समय नरेशन देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. फॉर आइटम नंबर 21 there will be 3 entries. First is this, second and third. 17,000 is received by check. It means the amount is received in bank account. Then bank account will be debited, and what will be credited? Insurance claim account. Account will be
credited 17,000. Insurance claim received why bank account is debited? Bank is a representative personal account. As per that account, debit the receiver. Here bank account is debited. And insurance claim, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? लॉस ऑफ गुड्स, इतने का गुड्स जो है लॉस हो गया, तो ये गुड्स में से उतना कम हो गया, परचेजेज अकाउंट उतना घट जाएगा। अब एक लॉस का आइटम अराइज हुआ 20,000 का, ठीक है, तो 20,000 का जब हम यहाँ पर सेटअप करते हैं तो 20,000 में से 17,000 घट गया, तो अब कितना बचा यहाँ पर? 3,000 का बचा, ये घट गया। तो अभी भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जर्नल एंट्री में लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर में 3,000 का अमाउंट दिखते रहेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम जो है केवल 17,000 ही एक्सेप्ट किया था, तो ये लॉस जो है इसी तरह से 3,000 का लॉस दिखते रहेगा। बाकी और क्या होगा, जो मेरा गुड्स है वो 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा, ये हुआ। और यहाँ पर मेरे बैंक में 17,000 पैसे आ गए, तो ये ओवरऑल इतना इम्पैक्ट हुआ इस ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कभी कभी क्या करते हैं बिजनेस में, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गुड्स फ्री सैंपल के रूप में देते हैं, कंपनियां देती हैं। ऐसा बहुत बार हमने आपने कितने ही गुड्स खरीदे होंगे जिसमें कि फ्री सैंपल के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाता है। कभी पॉन्ड्स का छोटा डब्बा मिल जाता है, तो कभी किसी आइटम का मिल जाता है, तो ये फ्री सैंपल के रूप में जो दिया जाता है, एक तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। तो एक तरह से ये एडवर्टीजमेंट भी है। फ्री सैंपल अकाउंट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक करेंगे, दोनों में से कोई एक डेबिट करेंगे। और फ्री सैंपल के रूप में क्या जा रहा है, अल्टीमेटली मेरे बिजनेस से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है टू परचेजेज अकाउंट। तो एज पर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, if there is any expense or loss, then that will be debited. Here free sample or advertisement is an expense for the business, this is debited as per rule of debit and credit for nominal account, and for real account credit what goes out, purchases account is credited here, and the narration will be goods distributed as free sample. Next is goods given as charity. Goods given as charity,
तो इसमें भी जैसे फ्री सैंपल डेबिट किए थे, तो अभी क्या होगा, चैरिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड. चैरिटी इज expense, an item of expense here. Charity account debit to, चैरिटी के रूप में क्या दे रहे हैं यहाँ पर, गुड्स जा रहा है, टू परचेजेज अकाउंट. परचेजेज अकाउंट stands for goods. The narration will be goods given as charity. यहाँ पर इसका अमाउंट डल जाएगा. दिस इज जर्नल एंट्री. 24. Placed an order to XYZ Private Limited for purchasing goods worth rupee. तो इसमें हम क्या देखते हैं, प्लेस्ड एंड ऑर्डर. ऑर्डर प्लेस किए हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड को, फॉर किस लिए, परचेजिंग गुड्स, गुड्स को परचेज करने के लिए. तो इसमें एक्चुअली गुड्स को ना तो हम परचेज कर रहे हैं ना तो वो सेल कर रहा है. तो देयर विल बी नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री for this item. For item number 25, received an order for rupee 10,000 from Mohan Brothers for supply of goods. तो अभी रिसीव किए हैं ऑर्डर, यहाँ तक तो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, ना कुछ आया ना कुछ गया है, अभी ऑर्डर रिसीव हुआ. लेकिन इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे क्या है, and received rupees 7,000 as an advance. यहाँ पर अभी आ गया, कितना आया, 7,000 आया, मतलब कैश आया बिजनेस में 7,000 as an advance. Then entry will be for 25. Entry will be cash account debit. And what will be credit to advance from Mohan Brothers account. कितना, 7,000. Advance received from Mohan Brothers for an order value 10,000. तो ये 10,000 का ऑर्डर था, लेकिन 7,000 रुपये एडवांस के रूप में लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ कैश आ रहा है एज पर रूल ऑफ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, देन कैश इज कमिंग, कैश विल बी डेबिटेड, एंड credit, this is actually this is representative personal account. Advance from Mohan Brothers is representing Mohan Brothers. Next, goods worth 10,000 supplied to Mohan Brothers against the order received from him. Then both entries are connected. अभी इस एंट्री में क्या हो रहा है, 26 में गुड्स का 10,000 वर्थ के गुड्स का जो है सप्लाई हो जा रहा है मोहन ब्रदर को, लेकिन
10,000 एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, टोटल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। अमाउंट कितना रिसीव हुआ था? 7,000 रिसीव हुआ था। तो सबसे पहले एक आइटम रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ सेल्स हो रहा है, $10,000 का, और मोहन brothers account will be debited because he is debtor now. The business have to collect rupee 3,000 from Mohan brothers. Then 3,000 will be debited, and this account will also be debited. Advance from Mohan brothers account, this is also debited. This was for 7,000. 3 and 7, 10. Here also 10. Goods is going out from the business, hence sales account will be credited. Now entry number 27, check for rupee 7,200 issued in favor of PQR against the final settlement of debt rupee 8,000, returns dishonored. तो ये तो कुछ अलग तरीके का है, तो ध्यान से एंट्री भी करना होगा और इसे समझकर इस पर प्रैक्टिस भी करना होगा, ताकि किसी भी तरह का गलती ना हो, एरर ना हो जर्नल एंट्री करते समय। फर्स्ट, चेक फॉर rupees 7,200 issued in favor of PQR against the final settlement of debt 8,000। पहले केवल इतना समझेंगे। डेट, टोटल डेट कितना, अमाउंट कितना है? 8,000। अमाउंट इज रुपी 8,000। अब इसमें क्या हुआ था? एक चेक इशू, बिजनेस ने एक चेक इशू किया था। कितने का चेक इशू किया था? 7,200 का चेक। बस इतने का चेक हुआ और ये माना गया था कि ये दिस इज द फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट हो गया। चेक इशू हुआ मतलब पैसा बिजनेस से गया, चेक बिजनेस से गया। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ और फाइनल सेटलमेंट मीन्स डिस्काउंट मुझे मिला। कम में ही फाइनल सेटलमेंट हो गया मतलब डिस्काउंट मिला। This is an item of nominal account, and the rule of debit and credit for nominal account is credit all incomes. This is an income for the business. किसी चेक इशू हुआ था PQR,
PQR account will be debited. 8,000 का और इतने का चेक इशू हुआ था, तो कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ? 800. नरेशन विल बी check issued check of rupee 7,200 is issued for full and final settlement of debt rupee 8,000 to PQR. This is the narration. Now the another portion, return dishonored. अब इसमें क्या हुआ? चेक तो बिजनेस ने इशू कर दिया था, लेकिन वो चेक जो है डिसऑनर हो गया. डिसऑनर के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं. तो ये बिल्स ऑफ अकाउंट जब चैप्टर शुरू होगा और उसमें जब डिस्कशन चलेगा, क्लासेस चलेंगे, तो ये डिसऑनर वाला कॉजेज ऑफ डिसऑनर और रीजंस ऑफ डिसऑनर मैं डिस्कस करूंगी. अभी रिटर्न डिसऑनर. तो डिसऑनर में क्या होता है? जस्ट रिवर्स एंट्री. इन केस ऑफ डिसऑनर जस्ट इसका रिवर्स एंट्री हम लोग पास कर देते हैं. देन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, डिस्काउंट account will be debited and PQR account will be credited. Check dishonor. तो ये दोनों को हम अगर एक साथ देखेंगे, मिलाकर दोनों एंट्री को एक साथ मिलाकर देखेंगे, तो क्या आउटकम क्या निकलता है? कोई भी प्रभाव हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका किसी भी अकाउंट को इसने अफेक्टेड नहीं किया. ये जो होल जो ट्रांजैक्शन है, इसका कोई भी इम्पैक्ट जर्नल एंट्री में नहीं पड़ा, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है. चेक मैंने इशू किया और वो फिर डिसऑनर हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है. लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मतलब नहीं है तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जर्नल जो होता है डेट वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो डेट वाइज कौन कौन सा इवेंट हुआ ये हमें जर्नल से पता चलता है. नेक्स्ट 28, received a value paid parcel of rupee 2,530 an employee was sent with rupee 2,550. यहाँ 30 था, यहाँ 50, मतलब एम्प्लॉय को मैंने 20 रुपये अधिक दिए हैं. टू रिसीव द पार्सल and transport charges ₹10 paid by employee and the balance amount returned by him. तो 10 रुपया 20 रुपया
बिजनेस ने अधिक दिया था इसे, तो 10 रुपया इसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पर एक्सपेंस किए और बाकी का बैलेंस अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, रिसीव्ड अ वैल्यू पेड पार्सल, इट मीन्स ये amount of purchase an item of purchases, debit what comes in purchases account will be debited. इस परचेज को कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगा, कर्टल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये VPP अमाउंट इज 2530 रुपी एंड इस पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10 रुपी लगा। ये पैसा गया, ये पैसा लेकर गया था एम्प्लॉय, तो कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टोटल कैश बिजनेस से कितना गया, 2540 रुपी गए। अमाउंट पेड फॉर VPP value paid partial and ₹10 paid for cartage. This is narration. Next, 29. Cartage paid on buyer's account. Here, item of carriage and cartage is actually expenses, but in this transaction, carriage and cartage is not expense for the business because it is paid on buyer's account. मतलब बायर्स के बदले बिजनेस ने पे किया, तो फिर क्या करेगा, बिजनेस बायर्स से फिर से वसूलेगा, उससे लेगा। तो बायर इज डेटर हियर, देन बायर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, पेड, it means cash is going from the business, then cash account will be credited. Narration will be carriage paid for buyer. Next is purchase of investment. तो यहाँ हम देख रहे हैं दो चीज दिया हुआ है, फेस वैल्यू भी दिया है, मार्केट वैल्यू भी दिया है। समटाइम्स फेस वैल्यू अधिक होता है और मार्केट वैल्यू उसका कम होता है, और कभी कभी क्या होता है कि अगर शेयर के परफॉर्मेंस में हाइक आया तो ये मार्केट वैल्यू बढ़ भी जाता है। तो हम जब भी इन्वेस्टमेंट का एंट्री जर्नल में करते हैं तो ऑलवेज मार्केट वैल्यू पर करेंगे। मार्केट वैल्यू या तो कम भी हो सकता है फेस वैल्यू से या अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो मार्केट वैल्यू भी यहाँ लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट, टू आइटम्स आर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर इन्वेस्टमेंट मनी इज गोइंग, देन इन्वेस्टमेंट account will be debited. What is this? Investment is an item of asset. Assets. If there is increase in asset, then the same will be debited,
and for investment amount is going from the business, then bank account will be credited. Investment of रुपये इतना जो भी होगा परचेज्ड, अनदर इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगेन सेल भी करेंगे तो मार्केट वैल्यू ही यहाँ पर एंट्री में लेंगे, मार्केट वैल्यू. और सेल करते समय कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज होता है तो वो इस इन्वेस्टमेंट में जो मार्केट वैल्यू होगा उस मार्केट वैल्यू में से डिडक्ट कर देंगे. डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट होगा उसको यहाँ पर दिखलाएंगे. तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सेल करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस में पैसा आता है. देन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इन्वेस्टमेंट डिक्रीज इन एसेट्स हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट made. This is narration. Now transaction 32. Previously written off bad debts has now been received from ABC Limited. पहले मैंने इसको बैड डेट्स मान लिया था, राइट ऑफ कर लिया था, रिटर्न ऑफ कर लिया था, और अभी वो रिसीव हो रहा है. रिसीव हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है. तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. बैड डेट्स रिकवर अभी रिकवर हो रहा है तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स. तो ये एक तरह का इनकम है. नरेशन विल बी कैश received out of bad debts written off. Now 33. Sohan brothers or rupee 10,000 he become insolvent. 40 paise in a rupee could be realized from him. तो इसमें क्या हो रहा है, सोहन ब्रदर्स के पास बकाया है 10,000. ही बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाता है. दिवालिया हो जाता है इट मीन्स उसके टोटल एसेट्स का जो भी वैल्यू है वो टोटल लायबिलिटी को मीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट. तो ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं सोहन ब्रदर्स. 40 पैसे इन अ रूपी कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम. और उनका जो भी एसेट्स हैं उसको बेचने के बाद लायबिलिटी को मीट करने के लिए अगर 1 रुपये का लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट केवल 40 पैसे ही रिसीव हो रहे हैं. कैश अकाउंट डेबिट.
किससे रिसीव हो रहा है? सोहन ब्रदर्स से. सोहन ब्रदर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा. ये अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, वो बैड डेट्स हो जा रहा है. तो ये सोहन ब्रदर्स से कितना पैसा लेना था? 10,000 लेना था, लेकिन मिला कितना? 40 पैसे. इट मीन्स 4,000 रिसीव हुआ और रिमेनिंग 6,000 जो है वो बैड डेट्स हो गया. तो इसका नरेशन होगा 40 पैसे in a rupee received from Sohan brothers and the remaining is treated as bad debts. Cash, this is coming as per rule of real account. Debit what comes in, and as per rule of nominal account, debit all expenses and losses. Bad debts is a loss, it is debited, and credit the giver as per rule of personal account. This is brothers account, artificial person, तो इनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. लास्ट एंट्री इज XYZ Limited was given a loan 20,000. XYZ Limited paid rupee 18,000 in full settlement of her account. Her or his कुछ भी हो जाएगा. Its account. तो लोन दिया गया था. बिजनेस ने XYZ लिमिटेड को लोन दिया था. इट मीन्स XYZ लिमिटेड इज डेटर ऑफ द बिजनेस एंड पैसा कितना आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिटेड. कैश आ रहा है 18,000. फुल सेटलमेंट. इट मीन्स डिस्काउंट मैंने दिया है. आइटम ऑफ एक्सपेंस 2,000. किससे पैसा आ रहा है? XYZ से आ रहा है. Credit the giver. Debit what comes in. Debit all expenses. Narration will be cash received from XYZ Limited rupee 18,000 as full and final settlement of his account. That's all for today. Then revise all these journal entries and practice it with illustration or references. Till then, keep learning, watch my videos. My next video will be on subsidiary books of accounts. Bye bye.